Okay, now we are going to study about adaptive immune response. But before going for the adaptive immune response, let's have the short review of immune system. Immune system is of two types. First is innate immune system. Second is adaptive immune system. In our previous session, we have seen detailed explanation of innate immune system. That innate immune system is a non-specific barrier. First of all, it is a non-specific barrier of immune system. Non-specific means they have few mechanisms by which they protect our cell. They don't discriminate between the foreign particle. Every foreign particle treated as the same particle, and the same mechanism will be followed to eliminate those particles. Okay, basically this innate mechanism include physical barrier and chemical barrier. Okay, so many sessions we have discussed regarding what are the different physical barriers and what are the different chemical barriers are there which help in the protection of immune system through innate mechanism. Okay, now from this session onwards we are going to discuss regarding adaptive immune system. Adaptive immune system, right? What do you mean by adaptive immune system? To learn that, let's learn what do you mean by adaptation. Adaptation means something which was not there previously, and when it comes, system changes, and according to that change system we will adapt something, and that is called as a adaptive part, right? And the immune system which change themselves for a new particle, that is called as a adaptive immune system. Adapt करना, किसी भी चीज को adapt करना मीन्स अपने अंदर कुछ माइनर चेंज करके बेसिक मैकेनिज्म के साथ उससे फाइट करना. इन्नेट के केस में कैसा था कि वो अपना मैकेनिज्म जो है वो छोड़ता नहीं था, जबकि एडेप्टिव इम्यून मैकेनिज्म इन्नेट मैकेनिज्म से अलग इस हिसाब से है कि वो कुछ चीजें जो है वो अपने अंदर की चेंज करेगा. सो adaptive immune system, it also referred to as a acquired immunity, and this it is a kind of immune system that composed of specialized cell, and the major aim of those specialized cell is to eliminate pathogens from the body or to prevent the growth of those pathogens in our body. Okay, there are few characteristics which are different from the innate resistance, and that makes adaptive immune system as a different immune system. Just like this adaptive immune system has ability to discriminate between self and non-self cell. Adaptive immunity के अंदर ऐसा पावर है कि वो सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ सेल को डिस्क्रिमिनेट कर सके. सेल्फ सेल मतलब बॉडी का खुद का सेल कौन सा है और खुद के प्रोटीन कौन से है, एंड बॉडी के बाहर की चीजें जिसको नॉन सेल्फ कहा जाता है वो कौन सी है, उसको डिस्क्रिमिनेट करने का पावर होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में. ये इन्नेट के अंदर मैकेनिज्म नहीं है. तो ये पहला पार्ट हुआ इन्नेट मैकेनिज्म से एडेप्टिव इम्यूनिटी का अलग पार्ट. दूसरी चीज, इसके अंदर डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी का मतलब there are so many type of cells which are used, there are so many type of mechanisms which are used in case of adaptive immunity, so that is called as a diversity. Second thing, in this adaptive immune response, whatever comes from the outside is called as antigen. जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है
उसको कहा जाएगा एंटीजन। उस एंटीजन को किल करने के लिए एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में जो चीज प्रोड्यूस होती है उसको कहा जाता है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जो होती है वो बेसिक 5 टाइप्स की है, लेकिन उसके अंदर अगर 1000 डिफरेंट टाइप के एंटीजन हैं तो उस एंटीजन को सामने फाइट करने के लिए 1000 अलग अलग टाइप्स की एंटीबॉडी भी जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डाइवर्सिटी। ह्यूज डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कंपेयर टू इनेट रेजिस्टेंट मैकेनिज्म। दूसरा, they are very specific. What do you mean by specificity? Say example, if a kind of antigen enter inside the body, for those antigens specifically एक एंटीबॉडी होगा जिसको हम X एंटीबॉडी कहेंगे, तो वो ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। अगर B काइंड का एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ है तो उसके लिए Y काइंड का एंटीबॉडी बनेगा और वो उसको एलिमिनेट करेगा। दिस विल बी स्पेसिफिक। सी काइंड का अगर एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है तो उसके लिए Z टाइप का एंटीबॉडी जो है वो एंटर होगा। सो ये चीज भी जो है वो स्पेसिफिक है। तो जितने अलग अलग टाइप के एंटीबॉडी एंटर होंगे उतने अलग अलग टाइप के एंटीबॉडी बनेंगे एंड दिस एंटीबॉडी विल बी स्पेसिफिक ओनली। ऐसा नहीं होगा कि Z एंटीबॉडी A एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर लेगा या X एंटीबॉडी C एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देयर विल बी स्पेसिफिसिटी। Third thing, they have the memory power. Memory power means if in childhood A antigen is enter inside the body, for that purpose X antibody is generated. In future like after 10 years or 5 years, again that A antigen enters inside the body, the adaptive immune cells will recognize कि for this there are I am having the specific antibody for this antigen, I am already having specific antibody in the past, so they will recall that and create that antibody again. So this has the memory power also. These are the 4 characteristics, that is discrimination between self and non-self cell, diversity, specificity and memory response. It is there in एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ये सारी चीजें बेसिकली इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर देखी नहीं जाती है, जिसके सेशंस हमने अभी तक देखे हैं। दिस इज अ डिफरेंशियल कैरेक्टर ऑफ अ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कंपेयर टू इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, नाउ लेट्स सी वेयर दिस एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इज देयर। दिस वन इज अ वंडरफुल इमेज which can explain. See, if some bacteria and virus are trying to enter inside the body, this will initially fight with have to fight with the innate immune response. So in innate response, the physical barrier will be there, that is skin cell, mucosal membrane and all that. This skin cell, this mucosal membrane and physical cells will protect our body, that is bacteria and viruses, kill bacteria and viruses and not let them enter inside the body. So that is the first line of defense और उसको innate response भी कहा जाता है। अगर कहीं पे ये वायरस और बैक्टीरिया गलती से फिजिकल लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को क्रॉस करके बॉडी के अंदर एंटर हो गए या फिर आगे के लेयर में इंक्रीज हो गए या फिर हमारा इनेट इम्यून मैकेनिज्म जो है वो फेल हो गया बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी एंटीजन से फाइट करने के लिए, तब जाके जो रिस्पॉन्स बनता है दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड रिस्पॉन्स या फिर एडेप्टिव रिस्पॉन्स। उसमें बहुत सारे स्पेसिफिक सेल्स जो है वो इन्वॉल्व है। देयर मेजर एम इज टू क्रिएट एंटीबॉडी और सर्टेन टाइप ऑफ सेल विच विल अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, अभी ये मैं जब बोल रहा हूं कि पूरा मैकेनिज्म क्या है तो समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट आई विल रिवाइज दिस स्लाइड अगेन। से एग्जांपल, bacteria and viruses are the foreign particle, they are not part of our body, they are trying to enter inside yourself. There is a continuous exposure of this foreign particle to the human body at each and every second. Each and every second exposure होता है तब
ये इननेट रिस्पॉन्स जो है बॉडी का, जो हमने अभी तक के सेशंस में पढ़ा है, फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, ये वो सब, वो ऑलवेज एक्टिव रहता है। इसलिए ये वायरसेस, बैक्टीरिया, एंटीजेंस बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकते, हो गए तो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये बैक्टीरिया, वायरस जो है वो इननेट रिस्पॉन्स को इवेड कर देते हैं, मीन्स उससे सरपास होके आगे निकल जाते हैं, और तब इम्यून सिस्टम के पास एक मैकेनिज्म है जिसको कहा जाएगा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। एट दैट टाइम इट विल एक्टिवेट एंड इट विल किल द पैथोजन। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेल्यूलर रिस्पॉन्स लिखा है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स लिखा है, वो क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, एंटीजन is trying to enter inside the body. What is antigen? Antigen is a foreign particle, right? This antigen when enter inside the body, this is an overview of an adaptive immune system, right? When this antigen enter inside the body, यहाँ पे ये जगह पे वो अगर एंटर हो गए हैं इननेट मैकेनिज्म को इवेड करके, तो फिर वो एक सेल से एनकाउंटर करेंगे जिस सेल का नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। There are cells like macrophage, dendritic cells, some neutrophils are act as a antigen presenting cell। वो क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। वो सेल क्या करेंगे, ये जो भी एंटीजन है बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है, उनको ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स APC अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपने सरफेस के ऊपर उस एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। नाम क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक सेल है, एक टाइप के सेल है जो प्रेजेंट कर रहे हैं। किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? एंटीजन को। सो इफ दिस एंटीजन इज ट्राइंग टू एंटर इनसाइड द बॉडी आफ्टर इवेडिंग इननेट इम्यून मैकेनिज्म, this antigen presenting cells will come. This antigen presenting cell will engulf this antigen inside them. They will rupture them, and rupture करने के बाद वो अपने सरफेस के ऊपर इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड दिस रिप्रेजेंटेशन के with the help of one molecule, and this molecule is called as MHC class 2 molecule. MHC class 2 molecule. There are two kind of MHC class molecule, MHC class molecule 1 and MHC class molecule 2. MHC class 1 molecule जो है वो सेल्फ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि MHC class 2 molecule जो है वो नॉन सेल्फ सेल, जो बाहर के सेल है जिसको एंटीजन कहा जाएगा, वहां पे वो रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एनगल्फ किया, और फिर MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल से उसको टैगिंग किया, जो और फिर उसको अपने सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट किया। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस ब्रेक डाउन ऑल दैट, इट इज द सेकेंड स्टेज, एंड उसको सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करना, दैट इज अ थर्ड स्टेज। क्लियर? थर्ड स्टेज के बाद आपका जो एंटीजन है वो रिप्रेजेंट हो गया है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे। नाउ द बॉडी कम टू नो दैट the antigen enters inside the cell by evading innate immune response, and जैसे ही वो आ गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने उसको एनगल्फ कर लिया, अपने सरफेस पे उसको रिप्रेजेंट कर लिया, राइट, विद द मॉलिक्यूल दैट इज MHC क्लास 2। तो अभी इम्यून सिस्टम को पता लगने लगा है MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ टैगिंग होने की वजह से कि कोई एक एंटीजन आया है, अभी उसको हमें एलिमिनेट करना है। तब एक इंपॉर्टेंट सेल यहां पे काम करेगा इसके बाद, दैट इज टी हेल्पर सेल। पहला रोल किसने प्ले किया? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने। अभी दूसरा रोल कौन प्ले करेगा? टी हेल्पर सेल पे प्ले करेगा। दिस टी हेल्पर सेल विल रिकॉग्नाइज द एंटीजन विच इज टैग्ड विथ MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल एंड ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। देखो, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर ये जो सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर एंटीजन अटैच्ड है, उसको टी हेल्पर सेल आके रिकॉल करेगा। टी हेल्पर सेल आया, उसको रिकॉल करा एंड कंफर्म करा कि नाउ एंटीजन इज एंटर इनसाइड द बॉडी, एंड दे विल स्टार्ट गिविंग सिग्नल्स, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। और हमने
केमिकल बैरियर में पढ़ा था कि इम्यून सिस्टम में सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए एक कम्युनिकेटर प्रोटीन यूज होता है जिसको कहते हैं हम साइटोकाइनिन्स। सो साइटोकाइन्स जो है दैट विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस टी हेल्पर सेल एंड अल्टीमेटली दिस टी हेल्पर सेल इज गोइंग टू एक्टिवेट आइदर टी साइटोटॉक्सिक सेल और बी सेल। दो में से कोई भी एक एक्टिवेट हो सकता है, दोनों भी एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज द रोल, दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, दैट टी हेल्पर सेल विल recognize antigen presenting cell with MHC class 2 molecule with a particular antigen, and activation of T helper cell will lead to activation of either T cytotoxic cell या फिर B cell. Okay, now the third phase will begin, that is activation of T cytotoxic cell. T cytotoxic cell एक अलग टाइप का टी सेल है। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में हमने टी सेल और बी सेल पढ़ा है। तो पहला टी सेल कौन सा काम कर गया? टी हेल्पर सेल। अभी कौन सा सेल काम करेगा? टी साइटोटॉक्सिक सेल। और टी साइटोटॉक्सिक सेल को किसने एक्टिवेट करा? टी हेल्पर सेल ने एक्टिवेट करा। अगर टी साइटोटॉक्सिक सेल एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो बहुत सारे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, बहुत सारे सेल्स को एक्टिवेट करेंगे एंड ये सेल्स जाके एंटीजन को किल कर देंगे। दिस सेल्स विल गो एंड दे विल किल द एंटीजन। इस टाइप की इम्यूनिटी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी के दो पार्ट है, एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो पहली हमने देख ली। क्या हुआ? पहली टाइप की इम्यूनिटी में एंटीजन आया, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एनगल्फ करा अपने अंदर, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल से अपने ऊपर रिप्रेजेंट करा, उसको जाके टी हेल्पर सेल ने रिकॉग्नाइज किया, टी हेल्पर सेल ने टी साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिवेट करा, टी साइटोटॉक्सिक सेल ने बहुत सारे अलग अलग सेल को एक्टिवेट करा जो सेल जाके एंटीजन को किल करेंगे। यहाँ पे सेल मिलके एंटीजन को किल कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसको कहा जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। उसके अलावा भी एक चौथा पार्ट होता है इन केस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसको कहा जाता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये केस में ये होगा कि टी हेल्पर सेल बी सेल को एक्टिवेट करेगा। इट इज अगेन अ काइंड ऑफ लिम्फोसाइट। बी सेल एक्टिवेट होगा तो बी सेल ह्यूमरल इम्यूनिटी में आता है। बी सेल एक्टिवेट होने के बाद दे विल प्रोड्यूस स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंटीबॉडीज एंड दिस एंटीबॉडी इज गोइंग टू किल दैट एंटीजन। मैंने जैसे यहां पे बताया कि हाउ इन्नेट इम्यूनिटी डिफर्स फ्रॉम द एडेप्टिव इम्यूनिटी, उसका यहाँ पे ये भी है स्पेसिफिसिटी। हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक सेल्स और स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्रिएट होंगे एंड जितने भी एंटीजन हैं अलग अलग, उतने अलग अलग एंटीबॉडी बनेंगे और वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो दिस इज अ ओवरव्यू ऑफ अ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। एक बार फिर से बोल दूं, अगर एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हो गया इन्नेट इम्यून मैकेनिज्म को इवेड करके, उसको सबसे पहले फेज में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है अपने अंदर एनगल्फ करेगा, उसको रप्चर करेगा और MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल की मदद से अपने सरफेस के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज अ फर्स्ट फेज ऑफ अ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। उसके बाद अगर उसने MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल से अपने ऊपर रिप्रेजेंट करा है तो एक सेल आएगा जिसको कहा जाएगा टी हेल्पर सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हेल्पर सेल? बिकॉज दिस सेल इज हेल्पिंग मेन बी एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी टू फंक्शन। ये टी हेल्पर सेल यहां से कमांड दे रहा है कि एंटीजन एंटर हो चुका है, नाउ वी नीड टू क्रिएट सर्टेन एंटीबॉडीज और सर्टेन साइटोटॉक्सिक सेल टू किल दैट एंटीजन। तो यहां से वो सिग्नल देगा, द सिग्नल विल बी इन द फॉर्म ऑफ साइटोकाइंस। आइदर इट कैन एक्टिवेट दिस थर्ड सेगमेंट दैट इज सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, या फिर वो एक्टिवेट करेगा बी सेल को जो अल्टीमेटली एंटीबॉडी बनाएंगे। टी हेल्पर सेल टी साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिवेट करता है और टी साइटोटॉक्सिक सेल जाके बहुत सारे सेल्स बनाता है जो अल्टीमेटली एंटीजन को किल करेंगे। इसको कहा जाता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। या फिर टी हेल्पर सेल
बी सेल को एक्टिवेट करेगा, बी सेल स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएगा स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एंड वो उसको किल करेंगे. तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ अ immune adaptive immune system. If the pathogen enters, they will first encounter by antigen presenting cells. This antigen presenting cells will trigger the T helper cell. This T helper cell may trigger T cytotoxic cell, TC cell, or it may trigger B cell. B cell will create antibody and T cytotoxic cell will create other kind of cytotoxic cells जो ultimately किसी भी microorganism को जो है वो kill करेंगे. Okay, this is the overview of the adaptive immune response.